For latest updates and short audio clips, follow us on Instagram, Reading the Author. Hey guys, welcome back to the podcast Reading the Author, a unique show where we read authors' mind and not their book. Meanwhile, I truly believe and pray that you and your families are completely safe and healthy as well. Guys, today we have Dr. Yojana Jain ma'am with us, and she's the author of altogether 3 books. The first one, Kagaj pe Fudakti Gilhariyan. The second one, Imli Ka Chatkara. And the third, the final, the latest one, Banaras meets Berlin. थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग ऑन आवर शो. आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि आपने हमारे शो को चुना. Thank you so much, Gaurav. I'm really pleased that we are talking right now and having this conversation. Pleasure, ma'am. Thanks for inviting me. Pleasure, ma'am. So, ma'am, like before we get into the podcast, I know much more about your books, about your upcoming projects, about your take on different aspects of this industry. I would request you to please introduce yourself ताकि हमारे listeners आपको और अच्छे से जान सकें. And do share how you started this writing journey as well. Well, my introduction is like I'm wearing multiple hats. I'm a scientist turned author, poet, performing poet, storyteller, songwriter, composer, entrepreneur, and a mother and a dreamer. My writing journey started since childhood. I remember the first poem I wrote, it was probably when I was in grade 2 or something. Grade 2, yeah. Gandhi ji pe likhi thi wo kavita. So the journey started very early. Words were my rescue and words were my escape and brought me relief from, whatever I was observing in and around my world. And it continued as poetry for a very long time. Just 10 years back, I started writing short stories. Okay. Yeah, and from there, I found that, it's very interesting to write short stories. Poetry is great, but I had ideas and concepts which I wanted to convert into, for which I needed like a bigger canvas. And so stories became my, a canvas for that matter. Okay. And from there, then came my first story collection, which then led to a longer story that we call as novel. And then I ventured into novel writing, which got published. And I'm grateful to my readers and my publishers that it has gained good momentum. So, ma'am, like after listening to this podcast, many people might be interested in buying and reading your books. So, talking from a new perspective of a reader, like what a new reader can expect from your book. Can you share some insights with us? See, what a reader can expect, my writings so far have been very versatile, very diverse. So, for example, my poetry collections are reflections of my inner emotions and the social dilemmas I see in the world around. Okay. सो क्योंकि राइटिंग जर्नी बहुत पहले से शुरू हुई थी और पब्लिश जो वर्क है उसमें बहुत सारा काम बहुत पहले का भी है जब हम लोग जर्मनी शिफ्ट नहीं हुए थे. सो राइट नाउ आई एम लिविंग विद माय फैमिली इन बर्लिन, द कैपिटल ऑफ जर्मनी. इट्स बीन ऑलमोस्ट 8 years. And before moving to Germany, I was living in India, in different parts of India. South India में भी हम रहे हैं. मेरी पढ़ाई बिट्स पिलानी से हुई है तो वहाँ पे राजस्थान में समय गुजारा, फिर बेंगलोर में गए, फिर दिल्ली एनसीआर में बहुत साल रहे. मैं आती उत्तराखंड से हूँ. आई एम अ प्राउड पहाड़ी. अच्छा. सो बहुत चीज़ें अलग अलग देखी, महसूस की, और बहुत कुछ लिखने के लिए मुझे मिला. राइट. सो आपको मेरी कविताओं में और कहानियों में, इमली का चटकारा और कागज पे फुदकती गिलहरियों में आपको भारत की बहुत झलक मिलेगी, इनर इमोशंस की बहुत झलक मिलेगी. खासकर कि इमली का चटकारा एक फीमेल ओरिएंटेड शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है. उसका जो टैगलाइन है वो है कि दुनिया की आधी आबादी की जिंदगी की खटास और मिठास लिए, है ना. तो 12 कहानियों का संकलन है. तो इसमें आपको बहुत दिल छूने वाली कहानियाँ मिलेंगी, और यही मुझे लगता है कि मेरी अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं कहूँगी कि जो भी
इमली का चटकारा पढ़ता है वो कहीं ना कहीं कहता है कि हमें इसमें अपनी झलक दिखती है या अपने जानने वाले की झलक दिखती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बट आसपास के चरित्र आपको नजर आते हैं। तो वेरी रिलेटेबल फ्रॉम आवर ओन लाइव्स, फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड अस। गुड़गांव की कहानियां हैं, दिल्ली की कहानियां हैं, अच्छा, हमारे ऑफिस की कहानियां हैं। नाउ कमिंग टू बनारस मीट्स बर्लिन, इट केम इनटू लाइफ आफ्टर आई मूव टू जर्मनी। ओके, कोरोना टाइम था, बहुत कुछ लिखने को था, एंड इट स्टार्टेड विद लाइक कि ठीक है, कैसे जर्मनी हैंडल कर रहा है कोरोना को वर्सेस इंडिया में क्या चल रहा है। बहुत कुछ था और बहुत सारे कल्चरल डिफरेंसेस और बहुत सारी चीज़ें जो आपको दिखती हैं जब आप आते हैं किसी दूसरे देश में रहने के लिए। उस समय लिखना चाहती थी और दिमाग में कुछ कैरेक्टर्स आए, थ्रिलर्स लिखना शुरू किया था। थ्रिलर से होते होते मुझे लगा नहीं, मतलब वो रोमांटिक में कब चली गई। मुझे लगता है नॉवेल ना एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप कैरेक्टर्स को सोचते तो हो, लेकिन उसके बाद कैरेक्टर्स खुद को ढालते हैं। एग्री उनकी अपनी जिंदगी अपने आप पे शुरू होती है, मतलब वो राइटर के माइंड को इवॉल्व करते हैं कि अच्छा। तो इट टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट दिस नॉवेल, बट दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ or a conversation between East and West, I would say. And this is a conversation, this is like something, I'm not saying this because I'm the author of this book, but because I think anybody who aspires to move out of India for study or work should read this book. Anybody who wants to know the life, the struggles when you move to a new country, they should read this book, because it is not just a love story. It is much beyond it, like the cultural barriers, the issues you face. It's a story of self-growth and resilience. So all these things. So yeah, so I think where I place myself as an author is this intercultural and intercontinental storytelling. Okay. Right now I'm kind of living between Europe and India, and I have so much to say, and that reflection you will definitely find in Banaras Meets Berlin. और इंडिया की पूरी झलक मिलेगी इमली का चटकारा में. Okay. I hope I answered your question थोड़ा elaborated way, but yes. Definitely. So ma'am, like from last couple of years ना, मैं भी बहुत ज़्यादा travel कर रहा हूँ, like almost eastern part छोड़ के मैंने almost सारा इंडिया घुमा है. So what I have felt that it has played a major role in evolving me as a person. Like मेरे काम में, मेरे बोल चाल के तरीके में, मुझे और humble बनाने में और बेहतर इंसान बनाने में, that has helped a lot. So when it comes to you, like आपने इतने सारे इंडिया के पार्ट्स में आप रहे हैं, काफ़ी सालों तक आपने पढ़ाई भी अलग अलग जगह से की हुई है, लाइक गुरुग्राम, पुणे, पिलानी. So that has helped you as a writer अपनी स्टोरीज को और ज़्यादा इवॉल्व करने में, ग्रो करने में. क्या यही वजह है कि लोग आपकी स्टोरीज से और ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, बिकॉज यू हैव सीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पीपल, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रीजन इन इंडिया? हैज दैट हेल्प्ड यू? डेफिनेटली, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनमें मुझे प्रेमचंद की याद आती है, जिन्होंने एक ही जगह, लम्ही उनका गाँव था. जी. और मैं वहाँ गई थी, अभी मैं पिछले साल जब बनारस गई थी तो मैं लम्ही भी गई थी और प्रेमचंद जी के परिवार से भी मिली. तो इकलौते, मुझे लगता है कुछ ही ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने अपनी एक ही जगह पे रहकर भी दुनिया के बारे में लिखा, समझ रहे हैं. तो वहीं से उन्होंने सारे कैरेक्टर्स निकाल के बहुत लोकल होके भी ग्लोबल की बात की. ठीक है, तो वो उतने दार्शनिक लोग थे. बट जनरली आप देखें तो राइटर्स के लिए ये फूड होता है, या राइटर्स, थिंकर्स, फिलोसफर्स, दे नीड ट्रैवल, दे नीड टू सी एंड फील द वर्ल्ड, टू सी एंड फील द डिफरेंसेस. दैट इज द फूड फॉर देयर थॉट. तो जो भी जो घर से निकला है और जिसने दुनिया देखी है, वही कुछ अलग सोच लेकर आ पाया है. ये जिंदगी की सच्चाई. ट्रू. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. या डेफिनेटली, आई मीन, और मैं इस पे ये भी जोड़ना चाहूँगी कि घूमना और एक्सप्लोर करना दो अलग अलग चीज़ें हैं. एज अ टूरिस्ट आप जाएं, वो एक अलग चीज़ है, और किसी जगह पे जाकर आप एक्चुअली, अब वो डिपेंड भी करता है आपका इंटरेस्ट क्या है. तो अपने इंटरेस्ट को अलाइन करते हुए
आप जगह को एक्सप्लोर करते हैं, राइट? तो Exactly, वो exactly. आपके लिए जो लेकर आता है बिल्कुल. वर्सेस आप बस ऐसे ही मस्ती करने जा रहे हैं कहीं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल completely different thing. So बिल्कुल. well traveled doesn't always mean well learned as well. In fact, I would like to add, ma'am, a couple of things in that. कि बहुत सारे लोग ना आजकल सिर्फ घूम के आ जा रहे हैं फॉर द सेक ऑफ फोटोग्राफ्स. वो उस चीज को या फिर अपने आप को एक्सप्लोर करना ना कहीं छोड़ दे रहे हैं. एंड आई होप यू विल ऑल्सो एग्री ऑन दैट कि आजकल हम कहीं किसी भी प्लेस पे जाए ना तो लोग तुरंत उस चीज को देख के अप्रिशिएट करना या उसको अपने अंदर एब्जॉर्व करने से ज्यादा ना वो तुरंत फोटो क्लिक करा के दूसरी पॉइंट पे जाने के लिए बेताब रहते हैं. हाँ जी, हाँ जी, that's like fast food travel culture. Yeah. Okay, so ma'am, as we talked about the perspective of a new reader, now as we will be sharing on social media, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आपकी किताब पढ़ी हुई है और वो भी इस पॉडकास्ट को सुनेंगे. So let's talk about their perspective, like what they can expect from you as of now. Like, are you writing something you want to explore a bit on some other genres, or you want to stick to these only? What's in the pipeline, and is there anything in the pipeline, by the way? There's a lot in the pipeline. The immediate one is a historical fiction, historical thriller, I would say. And I'm very excited about it. I have given it a title, and most likely I will keep the title unless my publisher kind of pressurizes to change it. So I'm happy to reveal it right now. For sure. It would be called The Last Devadasi of Berlin. Okay. It's going to be a dual narrative, dual timeline narrative. Okay. Spanning from 1942 World War II era and present time India and Germany. So I can't reveal much, but yeah, as I'm writing it, I'm getting very excited that it is turning good. And yeah, so this is my next book that is upcoming, and it should definitely come in 2026. I'm working towards that. Okay. Then since I'm a keynote speaker as well, and I speak on AI and humanizing AI, so my next project is going to be a non-fiction book related to AI and empathy or something like that. So making technology meet humanity. So that is something which is at a very basic seed level at the moment in my mind. Okay. But yeah, these are the two writing projects in my pipeline at the moment. Lovely, ma'am, definitely. So, ma'am, like when it comes to personal branding, if I call that as a specific name, most of the authors are trying to be known or remembered as a certain genre or certain type of author. Like वो एक template में ना अपने आप को fit करना चाहते हैं. Because I have been in this industry for more than 8 to 9 years as of now, and I have very closely seen and worked with many of them. Like उनके टेम्पलेट से लेके उनके फोटोग्राफ डिजाइनिंग, इवन द पोजेस, सब वो चाहते हैं कि वो बस उसी चीज पे अलाइंड रहे, उस पर्टिकुलर जॉनरा में अलाइंड रहे. सो व्हेन इट कम्स टू यू मैम, लाइक आज से 1-2 साल बाद अगर कोई देखता है, क्योंकि इट्स अ न्यू बुक बाय डॉक्टर योजना एंड उसने आपकी 1-2 किताबें पढ़ी हुई है. सो हैव यू एवर थॉट कि आपकी नई किताब उठाते ही उस रीडर के माइंड में क्या थॉट आना चाहिए कि इस टाइप की होगी, इस बारे में होगी, इस तरीके से लिखी गई होगी? कभी सोचा है इस बारे में फ्रॉम अ पर्सनल ब्रांडिंग पर्सपेक्टिव? सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि जो आपने भी बोला कि राइटर्स ऐसा चाहते हैं, आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया, इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी टू प्लेस योरसेल्फ इन अ पर्टिकुलर जॉनर. बट इफ आई कंसिडर माई सेल्फ, then my whole life, Gaurav, has been around reinventing myself every few years. So I don't see myself fitting into any one single box. Okay. And my ethos is you can be all you want to be. So I'm a PhD in pharmacology. I worked in pharmaceutical industry for 16 years. Then I went into entrepreneurship. I'm doing business at the same time. I'm very much into writing. It's not a hobby. Like all of these things I won't call like अच्छा जब time मिलता है कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है. I'm very serious about my writing. Okay. But at the same time, my brand Yojna, it stands for
creativity, originality, and self growth. Okay. So I will never fit into one single box, because the world will always try to, box you neatly and label it clearly. Do not tamper. Right? ये दुनिया चाहती है ऐसा करना हमेशा हर बिल्कुल। किसी के साथ. But that is exactly when you must show that you are your own unique brand, and what values you stand for. Yes. बट एक जॉनर में मैं नहीं बंधना चाहूँगी, क्योंकि अभी आपने जो मैंने आपको बताया कि मेरी एक सबसे पहली पोएट्री कलेक्शन आया था, फिर स्टोरी कलेक्शन आया, दोनों बहुत अलग अलग हैं. देन नॉवल बहुत अलग है, वो एक रोम-कॉम है. रोम-कॉम से कहीं ज़्यादा है एक्चुअली, मैं उसे रोम-कॉम की कैटेगरी नहीं डालना चाहूँगी. इट्स मोर ऑफ अ कल्चरल, इंटरकल्चरल लव स्टोरी. तो एक थ्रेड है जिसके ज़रिए आप बहुत सारा कुछ इंडिया और जर्मनी के बारे में, पॉलिटिकल, सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में बताते हो. ठीक है. बट यस, एक चीज़ मैंने ज़रूर सोची है कि मैं ऑफ कोर्स आई विल कीप ऑन राइटिंग नॉवेल्स, आई विल कीप ऑन राइटिंग पोएट्री. मैं बहुत पोएट्री करती हूँ. आप मेरा इंस्टाग्राम देखेंगे तो मैं बहुत लिख रही हूँ आजकल, पोएटिक जोन में हूँ, तो मैं उसको बोलती रहती हूँ. बट एसेज और लॉन्ग स्टोरी में मैंने ये सोचा ज़रूर है कि कहीं ना कहीं मैं खुद को, अभी जो मेरी पोजीशन है कि मैं यूरोप में हूँ और इतना सारा फील कर सकती हूँ, इतना सारा इंफॉर्मेशन और कंटेंट एंड स्टोरीज आई एम सीइंग अराउंड माई सेल्फ, तो मैं उसको एक इंडियन के पर्सपेक्टिव, इंडियन के लेंस से देखते हुए हूँ, जो शायद कोई और ऑथर नहीं कर सकता, क्योंकि वो उस पोजीशन में नहीं है. कोई यूएस में है तो यूएस की बात करेगा, कोई इंडिया में है तो इंडिया की बात कर पाएगा. आई थिंक आई वुड लाइक टू लिवरेज माई पोजिशन एज एन एक्सपैट राइटर based in Europe. Right? And that is something I would like to continue in my long stories. So that is something, not as a strategy of branding, I would say. ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत strict हूँ मैं इसके बारे में. पर जैसे भी जो next novel आने वाली है, वो भी मैंने बर्लिन और कहीं ना कहीं मैंने उसमें बनारस का थ्रेड डाला है, just to maintain that continuity. क्योंकि मेरी प्रोटोगोनिस्ट जो है वो कहीं से तो आएगी ना, इंडिया से. वो इंडिया से आई है. Dr. Saira Malik, she's an historian. So we are like having two women separated by 80 years. Okay, one in 1942 and one in 2025. Okay. Both historians. Both came to Berlin. So when I thought of, okay, where does Saira Malik come from? So the obvious choice was कि उसको मुझे कहीं ना कहीं, वो दिल्ली में पली पढ़ी है, but उसके roots बनारस में हैं. So I got tempted to do that. क्योंकि मैंने बनारस पे इतना काम किया हुआ है ऑलरेडी, तो आई गॉट टेम्प्टेड कि मैं उसको वहाँ से लाऊं ताकि मुझे वो कंटिन्यूटी भी मिले. तो आगे आने वाले टाइम में थर्ड नॉवल क्या होगी मुझे नहीं पता अभी, लेकिन हाँ, मुझसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो मेरी किताबें पढ़ेंगे तो उन्हें बहुत कुछ अपने देश और साथ में दुनिया के और देशों के बारे में जानने को मिलेगा, जो बहुत ऑथेंटिक होगा और बहुत ऐसी चीज़ें होंगी जो उनको रेगुलर और किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल पाएंगी. those kind of nuances and stories. Okay. So ma'am, like as you shared कि you are very serious about your writing. Like it's not like कि कभी लिखा कभी नहीं लिखा, या मौका मिला तो लिखा. So what's your writing schedule? Like every day particularly you devote some hours to your writing, or it's like कि thought आया तो उसको लिख लिया, बाद में बैठ के elaborate कर रहे हैं? How does it go? ये वेरी करता है गौरव. सो पोएट्री मुझे लगता है बाय डिज़ाइन आई एम अ पोएट. मैं और चीज़ें भी कर रही हूँ, बट एक कहीं ना कहीं मुझे जो मेरी अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ लगती है वो पोएट्री लगती है. मैं गज़ल भी लिखती हूँ, मेरे कुछ गाने भी आने वाले हैं अभी. हाँ, तो पोएट्री तो अपने आप आती है, पर नॉवल की जब बात आती है तो it definitely requires a lot of discipline. So these days when I'm working on my current novel, I take out at least 1 hour per day. Otherwise what happens, if I miss it, then it takes much longer time to pick the thread again. Because novel writing is like spreading that one plot across 300 pages, and it's very easy to lose the thread, lose your train of thoughts, और बहुत सारे descriptions आपको डालने हैं उसमें. So definitely like I
do the outline, and then I do the description filling and all. But answering your question in short, poetry for me comes by itself. Then I need little time to polish it. I don't strive to make it perfect or something, because वो raw poetry का जो मजा है वो उस पे बहुत ज़्यादा उसको शब्दों का जाल बुनने में नहीं है. Exactly. और नॉवल के केस में डेफिनेटली डिसिप्लिन की ज़रूरत है. अगर आप लिख रहे हैं तो मैंने अपने पहले नॉवल के एक्सपीरियंस सीखा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहिए. सो पहला ड्राफ्ट आपके हाथ में एटलीस्ट 6 से 7 महीने के अंदर होना चाहिए, नहीं तो फिर वो ज़्यादा टाइम ले लेता है. Okay. So, ma'am, as we talked about, like, your book, your upcoming projects, your different aspect on, personal branding and all. Now, coming to the point, like, when the very first time you heard, okay, theek hai, tomorrow your book will be live. Everybody will be able to buy it, read it, judge you on the basis of what you have written. So, on that particular evening, like, ek din pehle us shaam ko, what was going on your mind? Like, were you relaxed, excited? You just marked up some milestones कि इतने लोग जान रहे हैं, इतना तो book sale हो जाएगी. What was all going on your mind? अभी आपने क्वेश्चन पूछा तो मुझे लग रहा है, but I never gave it such a thought. I mean कि इस दिन publish होगी. My publisher for last 2 books was Prabhat Publications. Okay. Might be knowing, yeah. And they are very good to work with. So we worked. I worked with their team for the for the cover, the cover, book cover, and other things. And so I don't exactly remember it. There was like some point कि जब अगले दिन launch होना है, मुझे पता ही नहीं कब लॉन्च हुआ, क्या हुआ. ऐसा कुछ लॉन्च डेट जैसा कुछ नहीं था. उसका प्री ऑर्डर, हाँ, राइट. सो प्री ऑर्डर 1 महीने पहले शुरू हो गया था. तो उससे पहले सोशल मीडिया प्रमोशंस और उसकी रील्स बनना या उसका टीजर्स वगैरह वो सब उन लोगों ने शुरू कर दिए थे. प्रोसेस वहीं से शुरू हो गई थी. तो ऐसा नहीं लगा कि कोई एक पर्टिकुलर डे होगा जिसके बाद ऐसा बुक विल बी अवेलेबल. क्योंकि प्री ऑर्डर सेल्स 1 महीने पहले से शुरू हो गई थी, तो लोगों ने बुक करना, मेरे जान पहचान वालों ने और जो मेरे पुराने रीडर्स उन्होंने शुरू कर ही दिया था. एंड आई थिंक व्हेन इट वाज रिलीज आई वाज ट्रैवलिंग टू इंडिया दैट टाइम एंड इट वाज रियली बिजी. प्लस बुक के लॉन्चेस शेड्यूल थे. जैसे बनारस लिट फेस्ट ने एक लॉन्च शेड्यूल किया था बनारस में. फिर दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एक बहुत बड़ा लॉन्च हुआ था, बढ़िया, बहुत अच्छा हुआ था. डीडी न्यूज़ ने कवर किया था. और कुछ छोटे छोटे और भी हुए थे यूनिवर्सिटीज़ में. तो अच्छा था. मतलब वो मेरा इंडिया ट्रैवल के टाइम पे ही था कि जब बुक वाइडली अवेलेबल हुई. और साथ साथ में लॉन्च प्रोग्राम्स चल रहे थे, मीडिया कवरेज भी अच्छा चल रहा था. तो ऐसा कोई मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा है कि कोई शाम ऐसी थी कि अगले दिन मुझे क्या करना है. नो, it just happened in a flow, yeah, and it went very well. It was a very nice, beautiful, feeling कि आपकी बुक. और मेरे लिए स्पेशल क्यों था? क्योंकि पहली नॉवल थी, डेब्यू नॉवल इन इंग्लिश, बिकॉज पहली तो किताबें हिंदी में थी, और वो भी बनारस और बर्लिन के बारे में. आई वाज वेरी नर्वस इन जनरल, नॉट ऑन अ पर्टिकुलर डे, कि कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, लोगों को कैसी पसंद आएगी. बट या इट रिसीव्ड गुड फीडबैक सो फार. सो मैम, प्रोबेबली माय लास्ट क्वेश्चन टू दिस पॉडकास्ट कि इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग लिखना स्टार्ट कर दें, या फिर उनका पहला ड्राफ्ट उनके लैपटॉप में, उनके डायरी में, उनके नोटबुक में हो. So what would be your advice for those upcoming authors? Advice is very simple. It's writing is a very daunting task, of course. And it is an underrated profession, but it has changed the society. So words has immense power. So although author community जो हमारी है वो बहुत कई बार frustrate होती है, मैं भी frustrate होती हूँ कि इतनी आप मेहनत करो, इतना आप एक कोई म्यूजिक एल्बम निकलती है, उसके सुनने वाले इतने सारे लोग होते हैं, पर आप इतनी मेहनत करके किताब लिखते हो, उसके टेकर्स बहुत कम होते हैं कंपैरेटिवली, इफ यू सी, राइट. सो इट इज डिस्करेजिंग. बट जो एक्टर है वो एक्टर है, जो राइटर है, जैसे भगवान ने बाय डिजाइन राइटर बनाया है, तो वो है वही राइटर, वो तो लिखेगा ही, उसकी वही कला है. बिल्कुल.
तो मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों को नहीं सोचना चाहिए. हम जो कर रहे हैं ठीक है, हमें रिजल्ट चाहिए. और आई एम अ वेरी गोल ओरिएंटेड पर्सन, सो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपने गोल्स मत सेट कीजिए, आप एस्पायर मत कीजिए, बस अपने लिए लिखिए. अपने लिए लिखना तो पहला स्टेप है, लेकिन जो आपने लिखा है वो लोगों तक पहुँचे, वो भी बहुत ज़रूरी है. राइट. तो पर वो चीज़ें होंगी अगर आप. सो माई एडवाइस इज राइट ट्रूथफुली. Don't chase a particular genre just because it is hit, because it is trending. If you write poetry and you love to write poetry, you should stick to poetry. Okay. If you think that you can work across genres and across writing styles and forms, do that. Don't think कि लोग बोलते नहीं नॉवेलिस्ट तो नॉवेलिस्ट ही होता है, पोएट ही होता है. ऐसा भी नहीं. तो कोई ऐसा ट्रेंड, कोई ऐसा रूल क्रिएटिव फील्ड में है ही नहीं. जो बनाया है वो लोगों ने बनाया है, उनकी मत सुनिए. जो आपका दिल कहता है और जो आप कर पाते हैं वो कीजिए. तो डेफिनेटली खुद से ट्रूथफुल होना पहला स्टेप है. राइट. लेकिन साथ साथ में आपको ये भी देखना होगा कि आप अपनी चीज़ों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक. उसके लिए आप पब्लिशर के साथ अच्छे से काम कीजिए, एडिटर के साथ काम कीजिए और मार्केट ट्रेंड्स फॉलो कीजिए. आई थिंक दिस इज़ समथिंग विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वट आई लर्नड इन लास्ट मैनी ईयर्स इन दिस इंडस्ट्री इज़ दैट these days writer himself is doing the writing as well as the marketing and promotion and everything. So you have to wear so many hats to be really successful in this field and to make a mark. कि books तो रोज आ रही हैं हजारों, writers रोज प्रोड्यूस हो रहे हैं, रोज लिख रहे हैं. और सक्सेस का ये क्राइटेरिया नहीं है कि ठीक है अगर हम बेस्टसेलर नहीं बने या हमारी बुक इतनी नहीं लिखी है, उससे डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है. लेकिन एस्पायर करने में कोई बुराई नहीं है. एस्पिरेशन हमेशा होनी चाहिए. This is what I would say. And one last thing is, that's very important. I have seen many people who meet me and say, हम लिखना चाहते हैं, हम बचपन में लिखते थे, हमने कुछ लिखना शुरू किया पर हम ना फिर टाइम नहीं मिला, फिर हमने फिनिश नहीं किया. So unwritten words haunt more than written mistakes. So always remember, if you started something, finish it. If you finished it, try to publish it. And if you published it, try to promote it and reach to as many people as possible. Yeah, so this is my take on what, my advice to the new authors or the authors who are already doing well. Okay. Lovely. Okay, so that's all for today, guys. I hope you must have enjoyed this lovely and inspiring conversation with Dr. Yojana. And if you do, then do follow our podcast, Reading the Author, available on all the leading podcast platforms. And don't forget to buy and read the book. आप जस्ट Amazon पे जाए, वहाँ पे सर्च करें डॉक्टर योजना जैन. मैम की तीनों बुक्स आ जाएंगी. ज़रूर खरीदिएगा, पढ़िएगा और अपने जानने वाले, चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा. Thank you so much, ma'am, for coming on our show. It was my honor to be able to host you today. Thank you so much. Thank you. I'm very pleased. Thank you.